Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja. I hope you guys are doing good. I have another video on 30 lessons for 30-year-old me. The topic that I'm discussing today is lesson number 6. Stop overthinking and start doing things. I know it feels like a topic that has been talked about a lot. I'm pretty sure that this is a topic that you have come across once in your lifetime, and I'm pretty sure this has been discussed over and over again on YouTube, social media, books, you name it. I'm going to talk about my experience of overthinking and what I learned as a lesson in the 30 years that I have lived on this earth. And I hope you can relate somewhat from my story, from my experience. Maybe you are someone who comes from the same demographic as me, and maybe big words do not impact you. You can't find relatability in books, and it's through someone's words like this that you are able to find some solace in my story, some understanding that it's okay to feel like that, and what to do if you are a classic serial overthinker, and how do you still have a way out of it, how do you still can find a way out of that and actually do things that are helpful for you in your real life, and slowly you will start to feel like you're building a life for yourself. So before getting into the video, if you are an old subscriber, hello, welcome back to the channel. I am being very consistent with these videos, as you can see. Or if you're a new subscriber, new person clicking on this video, welcome. I am Pooja. I am a 30-year-old software engineer who have had her tryst with her mental health all throughout her adult life, and I just want to make sure I make some impact by my experience. At least maybe my story can be a learning opportunity for someone if I share it enough, and that is what I'm trying to do here. So stay tuned. If you haven't subscribed to the channel, subscribe to it, and by the end of the video, if you like it, please do not forget to give it a like, comment down below, and share it with your friends. When I think of overthinking, there can be various facets to overthinking. एक तो होता है कि आप बहुत ही सोशली ऑकवर्ड हो और आप जिस भी सिचुएशन में अपने आप को पाते हो, आप उसको ओवरथिंक कर रहे होते हैं। दूसरा होता है कि आपको कुछ काम करना है, और हम सबको कुछ ना कुछ काम करना होता है। सुबह उठना होता है, फिर शायद अपने ऑफिस जाना होता है, या फिर किसी कुछ घर का काम करना होता है, या बिल्स पे करने होते हैं। उसमें आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तीसरा होता है कि आप इतने ज़्यादा मेटिकुलस हैं, या फिर आपको इतना ज़्यादा आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, बट आपको डर लग रहा है क्योंकि आप अपने ही दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बना के चल रहे होते हैं कुछ चीज़ों की, कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा या करूँगी तो मुझे यहाँ पहुँचना है। एवरीवन ऑफ अस हैव ड्रीम्स एंड वी वुड लाइक टू अचीव देम, बट स्टार्ट करने से पहले ही हमको थोड़ा डर भी लगता है फेलियर का, एंड डर के साथ साथ वी ऑल्सो ओवर थिंक द प्रोसेस, बिकॉज मे बी डीप डाउन वी वॉन्ट टू गेट इट परफेक्ट। वी आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, वी आर अफ्रेड ऑफ आवर ओन एक्सपेक्टेशन, वी आर अफ्रेड कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या हो गया, वट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, राइट? एंड वी इमेजिन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज, एंड उसकी वजह से हम लोग कभी जाके कुछ करते ही नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे साथ ये तीनों चीज़ें हो रही थी, और यही तीनों चीज़ें किस और मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड थी, ये मैंने बाद में अंडरस्टैंड किया, और उसी की मैं कहानी बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो, जब से ही मैं छोटी थी, लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज़न्ट दिस वेरी शाय अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। आई डोंट रिमेंबर इट बीइंग लाइक दैट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, I guess socially we did not have phones, and we did not have a lot to compare ourselves with. It was just my school, my friends around the house, और मेरे siblings, और हम लोग अपनी बातें करते थे, और उतना ही हमारा दायरा था कंपैरिजन का। बट उसमें भी जब मैं थोड़ा बड़ी होने लगी, तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मे बी यू आर ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर, मे बी यू कम अक्रॉस वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग emotions with your friends, and maybe some of your friends are not able to understand you. ये सब चीज़ें हो रही होती है, इमोशंस बहुत रेजिंग होते हैं जब आप टीनेज ईयर्स में होते हो, तब जाके थोड़ा आप अपने आप को सेकंड गेसिंग करने लगते हो। बट जब मैं बहुत बच्ची थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ऐसा इतना सोचती थी। बस सिंपल सी एक लाइफ थी, स्कूल गए, स्कूल का काम किया, होमवर्क किया, घर आए, थोड़ी देर शाम को खेले, सो गए, खाया पिया, क्योंकि ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, वो भी है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं आपको। जब एक सेफ और स्टेबल हाउस होल्ड होता है, तो आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप जाते नहीं हैं,
पर जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ जोक करते थे कि जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड दैट हैज़ बीन द केस विद मी फॉरएवर। And I always start from reading the preface, and I cannot I cannot start a book without reading everything. So that this is a trait that has been carried on with me to my adult years as well, where I need to feel fully prepared and I need to tick all the boxes to enjoy a process, which in एसेंस तो अच्छा लगता है, इन बातों में बोलने में तो अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकलिटी में व्हेन यू एक्चुअली गो एंड स्टार्ट डूइंग इट इन एवरी सिंगल थिंग, इट बिकम्स ओवरबेयरिंग। तो कुछ कुछ साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग और दैट इज बीइंग मैच्ड विद अ क्वेस्ट टू अचीव परफेक्शन शुरू से ही हो रहा था। जब जब ऐसा मेरे को रियलाइज होने लगा लाइफ में कि स्टेक्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी पढ़ाई मैटर करने लगती है, राइट, और आपकी रिजल्ट्स मैटर करने लगता है, ऐसा आपको बताया जाता है। फिर आप वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग को थोड़ा भूलते जाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कारण ऐसा लगने लगता है कि आप फेल नहीं कर सकते। तो फेल नहीं कर सकते तो आप हर भी कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप चाहेंगे कि वो परफेक्ट हो जाए। तो अब एक बच्चे को या अभी मुझे अभी भी ये नहीं पता है कि क्या मैं ऐसे एक्शंस करूँ जो 100% मेरे सक्सेस में रिजल्ट करे। ऐसा तो शायद किसी को पता नहीं होता। अगर किसी को पता होगा तो वेल एंड गुड, इतना ज़्यादा स्किल होना तो सबके लिए बस की नहीं होता है। Everyone is just trying to do their best with the situations that they have got, and with that you start, right, you start. But for me, there was a point where I would never start. I would cook up stories in my head. I would try to foresee कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरे को वहाँ जाना है, और सारे फेसेट्स ऑफ फेलियर को मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। आई वुडेंट इवन बी एबल टू विजुअलाइज और इमेजिन, एंड because of the fear of failure I wouldn't even start, but I would continuously procrastinate the process itself. सो इस तरीके से मेरी जो ओवर थिंकिंग थी वो मेरे को स्टॉप कर रही थी एक्चुअली कुछ करने के लिए, क्योंकि मैं उस ओवर थिंकिंग को एक परफेक्शनिज्म से मैप कर रही थी और एक्चुअली बिना कुछ किए ही डर जा रही थी। तो जब आपको इतना बड़ा टास्क अपने सामने दिखेगा तो आप ओवर थिंकिंग करोगे, आपको डॉन्टिंग लगने लगेगा, फिर आपको लगेगा कि आप फेल कर जाओगे और फिर आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। तो एक तो ऐसे ओवर थिंकिंग काउंटर प्रोडक्टिव है। फिर दूसरा, जैसे जैसे मेरी लाइफ में एनजाइटी ने दस्तक दी, जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा एंशियस रहने लगी, इसी कारणवश रहने लगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मेरे ये एक्शन सक्सेस में नहीं बदला तो क्या होगा। और जब आप बच्चे होते हो तो आपके पास एक सेट सिलेबस होता है, आपके पास 4-5 चीज़ें होती है करने के लिए, आप वो कर रहे होते हो और वो ही इनफ होता है, विच इज़ ओके, दैट्स ऑल्सो हार्ड। पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी लाइफ मोर कॉम्प्लेक्स होती जाती है, आप बाहर वर्ल्ड में जाते हैं, आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी वर्क करना पड़ेगा, ऑफिस में, पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल हो गए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होगी कि आप अपने घर को कैसे चलाते हैं, बिल्स कैसे पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी फंक्शनल चीज़ें होती हैं। उसमें तक आई वॉज ओवर थिंकिंग एवरीथिंग एंड आई वॉज डिसफंक्शनल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज द लैक ऑफ बीइंग एबल टू डू दैट was causing anxiety in my life, that fear of me lagging behind because my actions are zero. I am not able to act on things. So it is, first I am starting off with a mix of overthinking that is led by anxiety, and because of that I am seeing more anxiety in my life, so this gap is increasing. सो दूसरी तरीके से ओवर थिंकिंग ऐसे मेरे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। थर्ड थिंग, एज आई सेड, जब आप सोशल सेटिंग में जाते हो तो इतना, क्या पता सब लोग इतने सोशल नहीं होते, सब लोगों को भी अच्छा बोलना नहीं आता, चार्मिंग होना नहीं आता। मे बी some of the interest that, let's say, I have, maybe books, not everyone want to talk about it. As a matter of fact, I've found very few people in my life, in my real life, who wants to talk about books. That's why I found a Instagram page and I am talking on the internet, because my friends don't want to talk about it all the time, but there's nothing wrong with it. But then that can mean a disconnect early on when you're trying to find friends and you're not finding people of your right interest. All of these things happen, और जब आप टीनेज ईयर्स में होते हो तब ये बातें आपको थोड़ी इफेक्ट भी करने लगती है। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे को
काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी फ्रेंडशिप्स बनाने में, और उसकी वजह से आई गेस मेरे दिमाग में बहुत बुरा इंप्रेशन बन गया to be social, because I always used to overthink social interactions so much that it translated into social anxiety at a point. And it was to a point when I started my first job, second job, I was very underconfident and I couldn't even speak. It was a very bad time in my life, and it held me back from achieving so much in my life, achieving just normal everyday functions like दुकान पे जाके कुछ लेना, या फिर कुछ बुक करना, या फिर कस्टमर केयर को कॉल करना, या फिर किसी पार्टी का इनविटेशन आया, सो व्हाई कांट आई गो, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली overthinking all the social interactions. There was a time when I was probably made to feel bad about having different interests, having a supposedly boring personality, and it kind of had a bad impression in me कि मैंने उसको अपने दिमाग में internalize कर लिया कि किसी को भी मुझसे बात करने का मन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे को एक भी इंसान ना मिले इस वर्ल्ड में जो तुम्हारे इंटरेस्ट की बात कर सकता हो? ऐसा नहीं है पॉसिबल। समटाइम्स इट जस्ट हैपेंस दैट वी आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। उसके बाद धीरे धीरे when I found an Instagram page, things have been better. And why they have been better, I will just talk about it in a little bit. But the main point that I was trying to tackle here was that it was the third kind of overthinking, where any place you are going, you are feeling really anxious and you are feeling like whatever I'll say, it will be painted wrong, or what would the other person be thinking about me. Okay, and because of that you completely just do not present yourself as who you are. And or या फिर if you want to charm a group, or if you want to be like introductory to a group, you know how sometimes you tell like fun stories about yourself, you're not even doing that because maybe you have fun stories to tell, but you're not able to just open up, and you are socially awkward, and the other people are also not able to perceive the best of yourself. So is that their problem? Then no, it is just something that you are showing. And in that way, don't you think overthinking is just stopping you from living your best life? I think yes, it is. So, here is what you are going to do if you ever feel you are in the same spiral, same loop. So, I'm not a therapist, I'm only talking about my experience. This is just a disclaimer, but this is something that I learned by doing. I also went to a therapist. The therapist told me a lot of tools, and I have been able to implement it over the years. And I feel I'm a lot better with overthinking. I actually do not overthink. I feel at this point I underthink because I know how counterproductive it can be for me. And once I was able to learn these little tricks, and it took time, it took some patience on my part to continue with the process, but I'm very happy with the result. जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग होती है कि आपको लग रहा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी नई पुरानी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है, या फिर आप प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा मंड गए हैं, उस ही को इतना ज़्यादा देर देख चुके हैं कि वो आपको ना एक डॉन्टिंग सी थिंग लगने लगी है और आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इधर बैठ के उस रिजल्ट को, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर इट, ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। आपको पहले जाना ही होगा उस प्रोसेस में। आपको पहले देखना पड़ेगा, अच्छा मैंने ऐसा सोचा था तो ये माइलस्टोन था, क्या वो माइलस्टोन उस हिसाब से अचीव हो रहा है जिस हिसाब से मैंने सोचा था? अच्छा नहीं हो रहा है तो मुझे क्या अपना पाथ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं? ये सब आपको करने से ही पता चलेगा, पहले से आपको पता नहीं चल सकता है। तो जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। तो इसके लिए अभी करना पड़ेगा। कभी-कभी मुझे करने से डर लगता है, तो मैं थोड़ी देर प्रोक्रेस्टिनेट करूँगी, मैं आई विल लेट इट बी बिकॉज़ दिस इज़ ह्यूमन नेचर। बट एज़ सून एज़ आई फील ओके दिस ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई बाइट द बुलेट, आई विल जस्ट गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट ज़ोन एंड फर्स्ट आई विल डू इट एंड देन आई विल थिंक। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की है कि मैं पहले जाके करूँगी फिर सोचूँगी। जैसे कि this is my main YouTube channel, but I also have another channel that's called A Book by the Window, and I talk about books there. And this channel is very recent. I'm only actively working on the videos from the last 3 or 4 months.
दिस चैनल हैज़ बिन इन क्रिएशन फॉर द लास्ट 1.5 years, पर मेरे को हमेशा लगता था मैं एक ही चैनल नहीं चला पा रही, दूसरे चैनल में क्या करूँगी और मेरे से नहीं हो पाएगा। पर फिर मैंने सोचा यार बना के तो देखते हैं। फिर वन थिंग लेड टू अनदर एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड enjoying putting up videos every single week there. I really look forward to it, and as a matter of fact that channel is growing faster than this channel. I don't know what it is. I probably do love enjoying talking about book and that shows, but अगर मैं कभी वो करती ही नहीं स्टार्ट, अगर मैं सोचती ही नहीं कि चलो करके देखते हैं व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, तो फिर अभी मैं इतनी खुशी खुशी उसका बेनिफिट रीप नहीं कर रही होती कि अरे मैंने सोचा था और मैंने किया और अभी देखो कुछ तो रिजल्ट आ रहा है। तो करे बिना तो कुछ नहीं होगा, करोगे कुछ होगा या तो फेल होगे। और अगर तुमको फेलियर से डर लग रहा है ना तो इनफ टाइम ना फेल हो जाओ। मैं डेलिबरेटली कभी कभी फेल होती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ना फेलियर कभी दिखा नहीं, और जब मुझे फेलियर दिखा नहीं तो मुझे उसको मैनेज करना नहीं आया, और फिर मुझे कभी कभी एक्सेप्ट भी करना नहीं आता था कि अच्छा मैं फेल हो गई। फिर मैं ना इनफ टाइम ना अब फेल कर चुकी हूँ जिंदगी में, बहुत सारी चीजें कर ली, नहीं वर्कआउट करी, अच्छा ये नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ो, मिट्टी डालो, कैसे करेंगे। तो फेल करना भी एक आर्ट है, और जैसे जैसे वो डर हटेगा तो तुम्हें एक्चुअली क्या करना है वो तुमको समझ आएगा, और जैसे जैसे समझ आएगा तो तुम अपने गोल के थोड़ा क्लोजर आओगे। तो यू वांट इट इनफ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड जस्ट गेट डूइंग। सो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड चीज जैसे मैंने बोली कि जब आप एंशियस पर्सन होते हो और एनजाइटी आपको इतना हो रही है कि आपको लग रहा है कि अच्छा मैं इस एनजाइटी से ही ऊपर नहीं उठ पाऊंगा या उठ पाऊंगी, और इसी वजह से आप बस यहाँ बैठ के उस एनजाइटी को ऊपर आने दे रहे हो अपने, और ओवर थिंक कर करके एक स्पाइरल में चले हुए हो। फिर आपका हाथ ही नहीं उठ रहा है, आप ही नहीं उठ रहे हो, आप सिर्फ एक जगह बैठे हुए हो। सबसे पहली बात, मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि स्पेसेस बहुत मैटर करती है आपके अराउंड। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि बहुत सारी स्पेसेस मेरे लिए ख़राब होने लगी बिकॉज आई यूज टू बी इन माई बेड अ लॉट ऑफ टाइम। समटाइम्स आई एम ऑन दिस काउच फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट लाइक माई मेंटल हेल्थ इज perfect every single day. Sometimes I'm in the bed that we have. Mostly it is a very happy place for us to be at the end of the day, at the end of a very productive day, we get to sleep there. पर बहुत बार ऐसा होता है इनफ टाइम चीज़ रह जाती है उस स्पेस में तो बुरा लगने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ से उठ के बाहर चले जाना और उस समय कुछ नहीं सोचना। क्या पता आपके साथ कुछ हुआ हो, कुछ ट्रॉमेटिक चीज़ हुई हो और उसके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, और निकल नहीं पा रहे हैं उस स्पाइरल से। वो चीज़ आपको अंदर से खाए जा रही है। वहाँ से उठ जाओ, बाहर जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, दोस्तों से मिलो, कुछ भी करो, बट वहाँ मत बैठे रहो, अकेले घर में मत बैठे। अनकंफर्टेबल होगा बट बेटर देन जस्ट स्टूइंग इन योर ओन थॉट्स, लेटिंग दैट ओवर पावर यू। अब कभी कभी ऐसा होता है वो आपके वर्क में रिफ्लेक्ट होने लगता है कि आप इतना एंशियस हो गए, इतना एंशियस हो गए कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही नहीं आ रहा। फर्स्ट स्टेप लेने से ही पहले आपको लगने लग रहा है कि आप फेल कर जाओगे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फंक्शनली आपको करनी है लाइफ में, जैसे बिल्स पे करना, बाहर जाना, बाहर जाके ऑफिस जाना, कम्यूट करना, रास्ते में आप 50 लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपके घर पे कोई हेल्प है या कोई भी कुछ हैंडीमैन आया है उनसे इंटरेक्ट करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कस्टमर केयर पे बात करना, ये सब चीज़ें बहुत लोग नहीं भी कर पाते। मैं एक पॉइंट पे नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई वाज सो एंशियस एंड दैट एंजाइटी ऑफ जस्ट नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग वाज मेकिंग मी मोर एंशियस। हाउ डू यू टैकल इट? एक तो मैंने बोला कि अगर आपको कोई थॉट बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो वहाँ से हट जाओ, बाहर निकल जाओ, और आप धीरे 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 छोटी छोटी चीज़ें करो जिससे आप फंक्शनल होने लगो। ये एक ऑब्वियस सी बात बोल दी मैंने कि डिसफंक्शनल हो तो फंक्शनल होने लगो, पर उसका मेरा ये तात्पर्य है कि मैं कभी भी ऐसे अटक जाती हूँ ना, कभी कभी आप अटक जाते हो कि अच्छा अब तो मैं फिर से एंशियस फील कर रही हूँ, तो दिस इज द थिंग दैट माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी, गो एंड ट्राई, बिकॉज द एंजाइटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, लेट्स से मेरे पास वर्क पे इतना ज़्यादा पाइल ऑफ वर्क है और मुझे बहुत अवेयर हूँ मैं कि वर्क है, और जैसे जैसे मैं इसको ओवरलुक करती जा रही हूँ ये एनजाइटी का गैप बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। फिर से कल मैंने सोचा अच्छा और नहीं हो पा रहा है, अच्छा और नहीं हो पा रहा है, उसकी बजाय मैं आज ही इस गैप को कम करके यहीं पे जाके कैन आई जस्ट गो एंड मेक श्योर आई डू वन थिंग टू फिक्स दिस, एटलीस्ट मुझे तो एंशियस नहीं लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रही।
फिर दूसरे दिन करो, फिर तीसरे दिन करो, मेक अ चॉइस। धीरे धीरे ये गैप कम होगा, फिर आप एक समतल पे आएंगे, फिर आप असली प्रॉब्लम्स पे आओ कि असली में ये प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी फ्रस्ट्रेशन है, क्या मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। उस एंजाइटी के फैक्टर को हटाओ, तभी तो प्रोडक्टिव हो पाओगे, तभी तो बेस्ट सेल्फ हो पाओगे, तभी तो सोचोगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेट्स जस्ट टैकल दिस प्रॉब्लम। धीरे धीरे एनजाइटी का ब्रिज कम करो, और जैसे ही एनजाइटी आए ऐसा सोचना है कि अरे एक चीज तो करके देखती हूँ, दो चीज, नेक्स्ट डे थ्री चीज, बेबी स्टेप बेबी स्टेप बेबी स्टेप। बट डोंट लेट दिस gap of anxiety widen enough, because real world works like that. You need to do some things, right? You need to be functional, you need to take care of a lot of things. In the end, when you are able to take up the responsibility and you are able to feel confident, there is no feeling like that. You'll thank yourself later for taking that first step. Take that first step. Do not overthink. तीसरी, जैसे मैं बात कर रही थी कि कभी कभी आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ओ मैं कितना ओवर थिंक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनको तो अच्छा ही नहीं लग रहा होगा, मैं क्या बात कर रही हूँ। सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। एक चीज़ है कि मैं ये लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंटली फॉलो करती हूँ कि कभी भी ये जानने की कोशिश मत करना कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर कुछ और सोशल इंटरेक्शन में कोई आपके बारे में क्या सोचता है। उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? Others' opinion of you is none of your business, is what I just plaster on my head. I remind myself every single day. Why? Because as long as their actions are not reflecting on something counterproductive in your life, if there's no one sabotaging your life because of the thoughts that they are thinking, what does it matter? Thoughts and actions are two different things. Your real world will be made by actions that they do in your life. दूसरी चीज़ कि बहुत बार लोग फ्लो में कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत लोग एंशियस होते हैं, बहुत लोग जेलस होते हैं, बहुत लोग बहुत सारे इनसिक्योर इमोशन से गुजर रहे होते हैं एवरी सिंगल डे। तो आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या पता वो किसी चीज़ से, किसी बात से अंदर से इनसिक्योर हो और उसने कुछ सोच लिया आपके बारे में। उसने एक्ट तो नहीं किया ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मत घुसो उस चीज़ में, मत सोचो कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। एज लॉन्ग एज रियली वो लोग आपको कुछ बुरा नहीं बोल रहे, कुछ बुरा नहीं आपको जता रहे हैं, दैट्स फाइन। और अगर जता रहे हैं, देन यू स्टॉप हैंगिंग आउट, डोंट गो देयर, डू नॉट be a part of a circle where you feel you are not welcome, where you are bullied. You will find 100 million people on the earth, on the planet to hang out with. You have yourself to hang out with. And add to that, start building up a confidence level of meeting a lot of people but being okay with yourself. Meet a lot of people on a basis where इट इज़ ओनली अ स्मॉल टॉक इन्वायरमेंट, और थोड़ी देर के लिए मिल गए, हाय हेलो कर ली। और अच्छे क्लोज फ्रेंड्स अगर हो पाए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो भी, उसमें भी इन्वेस्ट करो। पर सबसे बड़ी बात, अपना समय आपको पता है कि आप मोस्टली अपने साथ ही गुजार रहे हो, तो मेरे को भाई कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, आज तो मुझे बोल के चले जाओ, मैं अपने घर जाऊँगा, घर जाऊँगी, अपना रिलैक्स करूँगी, अपना टीवी देखूँगी, अपना बुक पढ़ूँगी और मैं सो जाऊँगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको फिर डर ही लगना बंद हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा अनइबिटेड उस सोशल इन्वायरमेंट में रहेंगे और आप मज़े भी कर पाओगे, क्योंकि आप पूरे टाइम सोशली ऐसे ऑकवर्ड हो रहे हैं, तो आप अपना बेस्ट सेल्फ भी नहीं दिखा पा रहे। और अभी आपको डेविल में केयर एटीट्यूड से जा रहे हो तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप डर नहीं रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी सोचे भाई, वो उसकी मर्जी, उसको सोचने दो। तुम भी एक इंडिविजुअल हो, तुम भी तो कुछ सोच रहे होगे उसके बारे में। सोचते रहो, बट करो ऐसे कि सब आराम से रिस्पेक्टफुली उस इन्वायरमेंट में बैठे। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने ऐसे बोला कि अपने ऊपर वर्क इतना करो कि आप कॉन्फिडेंट हो सको कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, और दूसरे लोग को भी वांटेड होना चाहिए कि वो मेरी कंपनी में आए। ऐसा नहीं कि मैं डेस्परेट होकर उस कंपनी को ढूंढती रहूं और उसके बाद डेस्परेशन में सोशली ऑकवर्ड हो जाऊँ। कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। Let people want to hang out with you. Be a confident person, have a varied personality. I know for me it has been a complete arc. मैं अभी बहुत सीरियस दिखती होंगी कैमरा पे, बट इफ यू आर माई क्लोज फ्रेंड, I am just like I am okay to be a laughing stock for people. I am joking endlessly, and I have so many million stories to tell. It is just unreal how much my confidence have boosted over the years, just because I stopped giving a f about what my brain is thinking.
and it has been so wonderful. I make so many friends. I am very chatty now, and I've also been able to, do this thing because I spend so much time on myself and doing hobbies that I enjoy doing. And I'm also thinking that I am building a life on the side by doing side projects. How amazing I am! I am amazing. I feel amazing because I am a confident person, and I will tell you this: a lot of people want to hang out with confident people. A lot of people are willing to have interest in the hobbies that you do. You only have to look at the right places. So ऐसे करके आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, मैं ऐसा कहना चाहूँगी, and you'll find yourself so much happier at the end of it. Yeah, so I think I have tackled all aspects of overthinking as I saw in my life. एंड आई होप इस एक्सपीरियंस से आपको भी थोड़ा सा कुछ लर्निंग या वैल्यू मिली होगी जो आप लेके जाओ और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो. अगर करो तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में नीचे कि कैसा रहा, कुछ आपको हेल्प मिली क्या, या फिर मैंने कुछ गलत बोला और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. एंड में इस टॉपिक पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग सुनने में अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो क्योंकि कोई चीज़ तुमको मैटर करती है, बट इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है. जितना जल्दी इससे ऊपर उठ के एक्चुअल वर्ल्ड में जीना स्टार्ट कर देंगे, एक्चुअल चीज़ें करेंगे, बाहर जाएंगे. मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बाहर जाने वाली हूँ रनिंग करने बहुत दिनों बाद. आई हैव जस्ट बीन कूप्ड अप इन दिस हाउस फॉर सो लॉन्ग. आई एम फीलिंग रियली शिटी. पर अभी मैं बाहर जाने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, और जैसा भी मैं अभी सोच रही थी, ओवर थिंकिंग भी कर रही थी, मुझे पता है जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी मैं डिफरेंटली फील करने लगूंगी, और एक बहुत सुंदर वर्ल्ड है बाहर जो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, आपके लिए भी है. बियॉन्ड दैट hurdle of your overthinking mind, and give your mind, your head some space to let it be. But in the meantime, go out and do actions. That is what is going to overcome your overthinking and overcome your fear and your anxiety of failure. आज के लिए इतना ही. I hope this video was helpful. And if you like this video, I'll remind you to like it, share it, comment down below, subscribe to the channel, and I will see you guys next time. Until then, have a nice day, have a nice week, have a nice life.